A very warm welcome to all of you. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेदिनी केयर के गर्भ संस्कार प्रोग्राम में। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वेबिनार है जिसमें आपको बताया जाएगा हमारे ऑफरिंग के बारे में, हमारी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। So may I request all of you to please switch on your camera. See, motherhood is all about interaction, is all about involvement. So I need the cameras to be on for all the lovely would-be mothers. Session will be in mix, Hindi as well as English. You tell us your preferred language. Yeah, Hindi. Am I audible? First of all, am I audible? Am I audible to everyone? Yeah, okay. Now, yeah, see, such a beautiful participant. Now my screen is full with beautiful faces of would-be mothers. Yeah, we will do it in mix. हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे हम। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। We will make sure कि आप सारा कुछ समझ पाए, सारा कुछ पार्टिसिपेट कर पाए, हर कोई इसमें। तो tell me something. What has made you come here? आपको क्या सोच आई आपके दिमाग में कि जिसके कारण आपने हमारे लिए फ्राइडे इवनिंग का टाइम निकाला और आप यहाँ पर हैं? I need involvement. I need some answers from your side. Can I have a few answers? Can I have a few answers? What you thought you will be gaining here? Just write in the chat box. Something. Why you want to be here? It will be an inspirational one. Want to give the best to my baby. So nice. Such a responsible motherly crowd we have. Want to know more about pregnancy, good information about Garbha Sanskar. Okay. Thank you so much. Thank you so much. So, okay, thank you so much. So, let me assure you that you are at the right place. मुझे ये गारंटी लेने का मौका दीजिए कि आप एकदम सही जगह पर आए हैं, जहां आपको गर्भ संस्कार के बारे में काफी कुछ जानने मिलेगा, जहां आपको प्रेगनेंसी के बारे में काफी कुछ जानने मिलेगा. So just allow me to take some of your screen time and allow me to go live on Facebook. Just a minute, please. Yeah. Going live on Facebook. Yes. Just give me 1 minute, please. Want to know more about pregnancy? Yes, you will know everything about pregnancy. And at the end, we will be taking up question answer, and each and every question will be answered. So don't worry about it. Just be ready for a journey called motherhood and tighten your seat belts. You are going to know something very, very, very different. Yes, so now we are live on Facebook also. Okay. So now I'm taking some of your screen time and just get involved with me. I need you here.
So the people who are not able to hear the audio of the session are requested to click this headphone icon and click this join with device audio or join with internet audio, whatever option you are getting at your device. And use of earphones is suggested for clearer audio. Okay, so let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे घर आए हैं या मैं आपके घर आई हूँ, बात एक ही है. So congratulations to all of you. I can see some couples also attending the webinar. So congratulations to the one who are carrying a new life in their belly, and also congratulations to the one who are carrying it in their mind and in their heart. That is, welcome both mother and father, would be mother और father. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. So what do you think the process called life is all about? आपको क्या लगता है कि no, it is not necessary to join as a couple, but it is always better to have your partner with you in this journey at least. So the process called life, what is it? The life we know is is a big cosmos. अगर हम अपना दायरा छोटा करते जाएं तो भी लाइफ अपने आप में पूरी होती है. If we try to expand it more and more तो भी लाइफ का कोई अंत नहीं है. So what exactly is life in our relation to our experience? In my definition, complete health is life, isn't it? Or complete life is health. जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से रख पाए, अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट हो पाए, अपने आसपास की लाइफ से कनेक्ट हो पाए, तो वो लाइफ होती है ना? एंड इट इज such a huge system, and it is so complex but yet so systematic in itself. Any other species other than human being do not require any support in conception, any support in holding a pregnancy, any support in delivering a pregnancy, because they are so very connected with the process called life. But we, as a human being the most sophisticated mechanism on earth, we need this support, we need some guidance. Why is it so? पूरे ब्रह्मांड में जितनी लाइफ है, जितनी जीवन है, जितनी जीवन शैलियां हैं, जितने जीव हैं, हर कोई अपने आप में परिपक्व है, हर कोई अपने आप में सक्षम है एक नई लाइफ इम्बाइब करने के लिए, इनवाइट करने के लिए, एक नई लाइफ को होल्ड करने के लिए और डिलीवर करने के लिए, अपनी फोटोकॉपी, अपनी रेप्लिका क्रिएट करने के लिए. पर सिर्फ और सिर्फ इंसान, जो कि दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बीइंग है, इंटेलिजेंट जीव है, हमें ही सपोर्ट की, हमें ही गाइडेंस की, हमें ही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है इस नेचुरल प्रोसेस को पूरा करने के लिए. ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम केवल तब होती है जहां इंटरवेंशन होता है. प्रॉब्लम ओनली अराइजेस, the disease, the issues, the unnatural smoothness of life arises only and only when you are interfering with life. See, आज थोड़ा क्लाउडी मौसम है, थोड़ा बादल वाला मौसम है. ड्यूरिंग दिस सीजन जो चींटियां होती हैं वो अपने एग्स ट्रांसफर करती हैं. So you suddenly find a big bunch of ants at a corner in your house, and if you do not do anything, it will slowly and smoothly get transferred and nothing residue will remain there. But if out of your intelligence you try to intervene in that process, अगर आप ये बारिश के मौसम में जब चींटियां अपने पूरे घर को शिफ्ट करती हैं, एग्स को शिफ्ट करती हैं, तो वो पूरा आपको अचानक से गुच्छा दिखाई पड़ेगा अपने घर में, और अगर आप उसमें कुछ हस्तक्षेप ना करें तो वो गुच्छा अपने आप जाकर स्मूथली आराम से गायब हो जाएगा. पर अगर हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं, इफ वी इंटरवीन इन दैट, so our complete room or our complete house will be full of ants, isn't it? And it would be a big mess, a big issue for us. So how we have intervened with the simple process, systematic process called life? हमने कैसे इसमें हस्तक्षेप किया है?
पहली चीज कनेक्शन तोड़ दिया. फर्स्ट थिंग वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन विथ मदर नेचर. Second thing, we have used incessant use of artificial medicine. See, once you conceive, you go to a doctor, you go to a gynae, she will prescribe you some iron calcium tablets, and from the very next day, you will start having constipation. It happens with each and every female. So what are you doing with yourself? आपने कहाँ intervention किया? Medicine से किया, thyro practices से किया, अपने diet intervention किया. We are, consuming more of altered food nowadays, less of natural food. We will have anything and everything which is exotic fruit, exotic vegetables, hybrid vegetables, clinically modified food. But we have, maintained, we are growing the distance between nature and us. Also, our thoughts, our logics, our lifestyle, our way of being, the way of very being, the way we breathe, the way we talk, the way we live, has been such a big intervention. हमारा जीने का पूरा तरीका इतना ज्यादा. हाँ जी रानी जी, दोनों भाषा में हो रहा है. अपनी अपनी भाषा चुनते जाइए. जस्ट बी मोर अलर्ट. हमारे जीने का तरीका, हमारी लाइफस्टाइल का तरीका हमने इतना ज्यादा आर्टिफिशियल कर लिया है, नकली कर लिया है, अप्राकृतिक कर लिया है कि हम में और नेचर के बीच में कनेक्शन दूर 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 होता जा रहा है. और ये इतने सारे इंटरवेंशन से क्या रिजल्ट निकला? What is the result of intervention? It is the risk. So when we talk about pregnancy at this moment, at the moment today, on the 16th April 2021, so what are the risk factors during pregnancy? इस पेंडेमिक टाइम में, कोरोना के समय में, जब किसी को खुद समझ में नहीं आ रहा है, जब आइडियली हम अपने सपने की जिंदगी जी रहे हैं कि घर से कहीं नहीं निकलना है, पार्टनर हमारे साथ है, अगर घर में और कोई फैमिली मेंबर है और कोई बच्चा है वो हमारे साथ है, बट स्टिल वी आर सफरिंग, still we are not sure that we can enjoy this life too. Still we are at the risk of getting infected. हमें नहीं पता है कि हम खुद को कैसे बचाएंगे. हमें नहीं पता है हम अपने वॉर्म में, अपने गर्भ में पल रहे बेबी को कैसे बचाएंगे. आप अपने आसपास देखिए, कोरोना तो अभी की बात है, पर इसके अलावा जो क्रोनिक एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स विच आर, in our childhood we used to say कि बीपी, डायबिटीज और थायराइड, ये सारा तो ना बुढ़ापे की बीमारियां होती है. बट नाउ the people in early ages, like in late 20s or 30s or even teenagers mein, people are having thyroid, people are having diabetes. BP is such a common thing that it is in fashion. हर चौथे बंदे में से 3 लोगों को या 2 लोगों को कोई ना कोई क्रोनिक एलिमेंट होता ही है. छोटे छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग किड्स, उनमें भी ड्रग डिपेंडेंसी बढ़ रही है, इंसुलिन पे आ रहे हैं. तो आपको क्या लगता है हमने क्या किया? छोटे स्कूल गोइंग बच्चों में डिप्रेसिव टेंडेंसीज हो रही है ना. अब इसके साथ साथ ये तो हुआ रिस्क फैक्टर, रिस्क इसके आगे भी है, बहुत ज्यादा है. क्या आपको लगता है कि ये सब रिस्क हैं? कैन आई हैव योर यस और नो इन द चैट बॉक्स? डू यू थिंक कि जो मैंने अभी आपको बोला है, क्रोनिक एलिमेंट बोला है, पेंडेमिक सिचुएशन बोला है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज बोली हैं, ये बच्चों में जो हो रही हैं, क्या ये आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? Isn't it a risk? Of course it is. Yeah, thank you so much for your answer. Now, अब अभी जो हमारी सिचुएशन है, हम ऑलरेडी कंसीव किए हुए हैं, हम गर्भाधान की स्थिति में हैं. तो इस स्थिति में आइडियली कहा जाता है, आदर्श रूप से, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ अ लेडी. हमारी स्त्री की, किसी भी महिला की पूरी जीवन के चक्र में ये सबसे कलरफुल पार्ट होता है ना. एक नए जीव को जन्म देना बिल्कुल क्रिएटर जैसा अनुभव है ना. पर ये हमने कितनी सारी, ये हमारे लिए तो मेलोडियस होता नहीं है. जब हमने आपको कॉल करने की कोशिश की, कुछ लोगों के तो फोन नहीं उठे,
कुछ लोगों से बात नहीं हो पाई, और जिनसे बात हुई वो इतनी कमजोर, इतने बीमारी में, इतने थके हुए लगे कि वो एक्साइटमेंट हमने मिस किया। कहाँ गया वो एक्साइटमेंट, एक मदरहुड का, एक प्रेगनेंसी के पीरियड का, जहाँ हमें इच्छाएं होती हैं कि ये खाना है, आज वो बनाना है, ये खुशबू चाहिए है, ऐसे रहना है, इससे मिलना है, ये सुनना है। ये तो कुछ भी नहीं मिला हमें। हमें क्या पता पड़ा कि सारे लोग कॉन्स्टिपेशन को सफर कर रहे हैं, वेट इश्यूज हो रहे हैं, गैस्ट्रिक इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, वीकनेस बहुत आ रही है मैम, क्या बताएं, हाइपर एसिडिटी भी हो रही है, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, थायराइड तो नहीं हो जाएगा कहीं, गैस्ट्रिक डायबिटीज तो हम अपनी लाइफ में कैरी नहीं कर लेंगे, एंजाइटी इतनी हो रही है, आसपास का माहौल ऐसा है, हम क्या करें, क्रोनिक एलिमेंट तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारे इश्यूज हमें मिले जब हमने आप में से कुछ लोगों से बात की। पर एक ब्यूटी होती है हर फीमेल के अंदर, इतनी रिस्क के बाद, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन सच अ रिस्की पोजीशन, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन सच अ facing so many problems within themselves, they still they still aspire for a baby, they still aspire for a healthy baby. But wait, ये जो problems आपने हमें बताई हैं, the problems which you are facing is not only your issue. If we look at the data around the planet, so depression and anxiety and behavioral disorder is very much common in pregnant ladies and early stages of life, like within 3 to 5 years to 17 years. This is very much common. Also, the drug dependent newborn, दवाई पर आश्रित बच्चों की पैदाइश बहुत बढ़ रही है। अब आप खुद सोचिए, एक नई लाइफ है, एकदम फ्रेश लाइफ है, but that is dependent on the drugs. I mean, how has the mechanism gone wrong? कहीं तो गड़बड़ हुई है, ना केवल ये, not only this, but the world population level of fertility वो भी डिक्रीज हो रहा है, miscarriages are very common, है ना? तो इस सब के बावजूद पूरी दुनिया इससे सफर कर रही है, complete planet is suffering this. We have the potential, we have the capacity to still aspire for a genius child. So, what is your aspiration during pregnancy? Can you write in the chat box? Who wants a genius baby? Who wants a hugely capable baby? ऐसा कौन है जो चाहेगा कि उसका बेबी जो है वो इतना इम्यून हो कि उसे कभी कोई बीमारी ना हो? ऐसा कौन चाहेगा? हु विल बी द, yeah, exactly, hugely genius and strong baby, a healthy baby, a cute and healthy baby, so nice, a baby with who has IQ, EQ, happiness quotient at its peak. अब डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि निमोनिया तो सब बच्चे को होता है, इम्यूनिटी तो सब बच्चों की वीक होती है। नो, इट इज नॉट ट्रू. If you have the method, you can make it happen, that you can deliver the most healthy, the most genuine, the most powerful life, जिसे आपको याद किया जाए कि अच्छा ये उनका बेबी है, आप विवेकानंद के वंशज हैं, आप शिवाजी महाराज के वंशज हैं. Exactly. So here all the moms are still aspiring for an all-rounder baby, a super baby, because we are capable of being a super baby's mom, है ना? अब ये बताइए, हमने देखी risk, we have seen the risk, we have seen your problems, but still we have seen your aspirations also. Now, you tell me, like if you want to deliver a super boy, a super healthy baby, who is responsible for bringing this much powerful life on this planet? Who is responsible? Yes, you are responsible. क्या कोई गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? नहीं. क्या कोई हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है? नहीं. क्या आपकी सासू माँ रिस्पॉन्सिबल है? नहीं. क्या आपका हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल है? नहीं. ही हैज डन हिज जॉब, नाउ ही कैन सपोर्ट यू. पर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आप एक अपने सपने का बेबी, देखिए हर बेबी बेस्ट होता है एक माँ की दुनिया के लिए, है ना? So now tell me something, do you know anything जिससे कि आप
ये जिम्मेदारी ले पाए, आप ये गारंटी ले पाए. डू यू नो एनीथिंग which by which on the basis of which you can guarantee that your weakness will not be transferred to your baby, that your limitations will not be carried forward in your baby, that your diseases will not be carried forward in your baby, that you will be contributing in the evolution process, that your baby will be far 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 more better than what you are as a parent. क्या कोई ऐसा मेथड है? आप जानते हैं किसी ऐसे मेथड को? यार, पीपल आर सेइंग इम्पॉसिबल, इट विल बी ट्रांसफर्ड. ओके, अगर मैं ये बोलूं कि ऐसा कोई मेथड है जिससे कि आप ऐसा कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? डॉक्टर के पास चले जाना. What does responsibility mean? कि when I came to know that I am pregnant, I visit a gynae, आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स ले लेना, या फिर डेली की एक वॉक कर लेना. डू यू नो एनी ट्रेनिंग, एनी संस्कारा that can guarantee that the baby you are desiring, the baby you are aspiring for? Okay, if someone else has written healthy thinking and positivity in ourselves. Okay, so tell me, I reside at Noida and I need to go to Pune. Okay, now I think that I will reach Pune and I start walking in other direction. Will I ever reach Pune on time? Of course I will reach Pune. पूरा चक्कर लगा के प्लानेट का, जिंदा रही तो पहुंच जाऊंगी. बट विल इट बी द राइट वे? क्या केवल सोचना, क्या केवल मैनिफेस्टेशन ही सफिशिएंट है? क्या उसके अलावा कुछ नहीं है? देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. Yeah, you need to know the right direction and the right mechanics of it. Okay, so the thing we call Garbh Sanskar, the thing we call Garbh Sanskar is the complete intelligence system of empowerment training. Empowerment of whom? Empowerment of the mother, empowerment of the baby, empowerment of the environment she breathes in, empowerment of the environment the baby breathes in. See, you know, आपको पता है कि गर्भाधान या गर्भ संस्कार, एक बेबी को इनवाइट करना, एक लाइफ को इनवाइट करना और उसको पालना इज नॉट ओनली अ फिजिकल प्रोसेस. इसमें आपका इमोशन कंट्रीब्यूट होता है, आपका एनर्जी कंट्रीब्यूट होती है, आपकी बॉडी कंट्रीब्यूट होती है, आपका टाइम कंट्रीब्यूट होता है. Darling, you invest yourself in something called being mother. It is not just a physical process. It cannot be just an emotional process. It cannot be just an energy process. It cannot be some mental manifestation. It cannot be this. Garbh Sanskar is complete empowering of you. So, what does physical empowerment mean? Physical empowerment has two parts: voluntary emotions, voluntary aspect empowerment, and involuntary aspect empowerment. Voluntary aspect control enhancement is actually your mind, your body, your emotions, the way you carry yourself. If you are moving your hand by your wish, this is voluntary action. And involuntary aspect is strength of the heart, strength of the liver, strength of lung, strength of nervous system, strength of mind. So number one aspect of Garbh Sanskar is physical empowerment. Number two aspect is protection from disease post delivery. बेबी को भी बचाना है, आपको भी बचना है, ना केवल बचना है, स्ट्रेंथन भी होना है. Number three is talent enhancement. Anybody will not want to deliver a baby who is not talented. आगे कुछ भी हो जाए हमें नहीं पता, पर in our capacity, if given a choice, we will want to deliver the most talented baby possible in the planet till date, isn't it? And number four is efficiency enhancement. So ये चारों चीजें कैसे हो सकती हैं? How can this be possible? This is possible by a method called Kumbhak. Kumbhak is a breath hold method which is natural trigger. ये एक breath hold methods होते हैं
जो कि बॉडी की भाषा ही होती है। अब ये क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं? हम खुशकिस्मत हैं, वी आर लकी इनफ टू हैव a rare Kumbhak yogi with us. So allow me to introduce Swami Raj Vibhuji. He is a Kumbhak yogi and he has invested his complete being, he has invested his complete life in curing thousands of people from chronic ailments and for the revival and exploration of Kumbhak therapy. तो ये सारा चीज क्या है, इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर स्टॉप करूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी राज विभू जी को, जस्ट अ मिनट। मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? So many cameras off. हाँ? How do we talk? बात कैसे करें? हाँ? How do we talk if you put your cameras off? मैं किससे बात करूं? Blank screen. Should I talk to the blank screen? Now, you need to understand that everything that happens in your life is your responsibility. जितनी भी चीजें आपके जीवन में होती है ना, आपकी जिम्मेदारी है वो। तो पहली चीज, why I am here, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? I want to just open your eyes. मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। किस चीज को लेके? Because the way you have been trained, you are living in a different world. एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, you are living in a world where every kind of difficulty is on rise. जीवन मुश्किल होता जा रहा, तो आपको थोड़ा वहां से निकालना है। So how do you come out? कैसे निकलेंगे? You'll have to open your eyes. See, what you do with yourself is your responsibility. आप अपने साथ में क्या करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, मेरा काम है कि आप सही दिशा में चलें. You go in the right direction. So, Garbha Samskara, we'll do some experiment also to understand what I am trying to deliver, trying to say. हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ये चीज आप जान जाइए, ठीक है? अगर दुनिया में डिसीज बढ़ रहे हैं, इफ डिसीज इज ऑन राइज इन द वर्ल्ड, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमको देखना पड़ेगा वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग, कहां पे गलत हो गए। You want a healthy baby, of course everybody wants a healthy baby. You don't want a baby which gets into chronic disease. आगे चल के chronic disease में नहीं है। पर आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? What are you doing? कर क्या रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, if you are weak, अगर आपका सिस्टम वीक है, if your body is weak, will you be able to deliver a healthy baby? If you are mentally not that strong, आपका IQ लेवल कम है, if your IQ level is low, will you be able to deliver a high IQ baby? क्या हाई IQ बेबी डिलीवर करेंगे? अगर आपके ऑर्गन स्ट्रांग है, एवरीथिंग एल्स इनसाइड यू, लाइक योर हार्ट इज वीक, so will you be able to deliver a baby with a strong heart? तो क्या करना पड़ेगा? Are you doing something? Now risk factor has increased. Risk तो बढ़ गया आज. During pregnancy, mother is getting into different disease. प्रेगनेंसी के दौरान ही बहुत डिजीज होने के चांस है, आपको मालूम है? कोरोना तो एक चीज है, बट देयर इज हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इनटू डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड डिफिकल्टी। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी हो सकता है, एनी टाइम इट कैन हैपन। आप क्या कर रहे हैं उससे बचने के लिए? उसके बचने के लिए क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एम्पावर करने के लिए क्या? व्हाट आर यू डूइंग टू एम्पावर योरसेल्फ? नाउ यू अंडरस्टैंड एम्पावरमेंट एज फिजिकल एम्पावरमेंट, यानी कि मैं ज्यादा वेट उठा लूं तो मैं एम्पावर हूं। नहीं 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 नहीं, इतनी सी लाइफ है क्या? इज लाइफ हैपनिंग जस्ट ऑन योर फिजिकल लेवल? हाँ, मुझे बताइए, ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो गेट इनटू डिफिकल्टी एंड डिजीज, इजंट इट? स्पोर्ट्स खेलने वाले डायबिटीज हो जाते हैं, आप कैसे बचाएंगे? फिजिकली स्ट्रांग भी कर लेंगे, इफ यू मेक योरसेल्फ फिजिकली स्ट्रांग, स्टिल यू विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। सो सपोज कीजिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जेनेटिक्स। मैं आपको जेनेटिक्स थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, सो दैट यू गेट इट क्लियर। जेनेटिक्स को कहते हैं, जेनेटिक्स इज लिमिटिंग फैक्टर।
लिमिटिंग फैक्टर का मतलब आपके शरीर के अंदर कितने हद तक आप उसको एम्पावर कर सकते हैं, उसका लिमिट कहां है, दैट इज जेनेटिक्स. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज जेनेटिक्स प्ले 1% रोल. 1% रोल है जेनेटिक्स का. देन 99% रोल इज इन योर हैंड. इट इज कॉल्ड एज एपीजेनेटिक्स. इसको क्या कहते हैं? एपीजेनेटिक्स, वेरिएबल जेनेटिक्स. यानी इफ यू कैन वॉक 25 किलोमीटर, हाँ अभी तो नहीं कर पाएंगे, अभी तो यू विल नॉट बी एबल टू इवन वॉक 5 किलोमीटर, बट कैन यू वॉक 25 किलोमीटर? यस, यू कैन वॉक 25 किलोमीटर, बट यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट. तैयारी करनी पड़ेगी ना. यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट. यू एक दिन सोचा और एकदम से यू कांट रन 25 किलोमीटर. वो जो छोटा मैराथन होता है ना 25 किलोमीटर से स्मॉल हाफ मैराथन. So can you run 25 kilometers? नहीं नहीं नहीं, you'll have to prepare for a year or two. 2 साल प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाएंगे. हाँ, you go to एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं, you prepare 1 year for that, approximately 1 year, 1 साल प्रिपेयर करते हैं. प्रेग्नेंट हो गए, कितना प्रिपेयर किया? You didn't prepare at all. लाइफ पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं, नो प्रिपरेशन एट ऑल. Everything else you prepare. शादी करना चाहते हैं, how much preparation happens? How much preparation happens? अब एक लाइफ पैदा करना चाहते हैं, no preparation at all. कोई प्रिपरेशन नहीं करते हैं. एक गायनी के पास जाके काम हो गया आपका. So let's understand this life a little. थोड़ा सा समझे इसको. तो मैं क्या कह रहा हूं, 99% क्वालिटी बिल्डिंग ऑफ योरसेल्फ, आपका क्वालिटी बिल्डिंग आपके हाथ में. What quality you have, what kind of intelligence you have, what kind of focus you have, what kind of strength of voluntary and involuntary function you have, 99% आपके हाथ में है, but you will have to build it. So once conception has happened, conception से पहले both mother and father is responsible for the child. उसके लिए prepare पहले से करना चाहिए. You need to prepare it before, but after conception only mother gives the environment. माताओं की केवल जिम्मेदारी है. सो आप एम्पावर करने के लिए कर क्या रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. देन योर चाइल्ड विल बिकम टैलेंटेड बाय इटसेल्फ. विल यू बी एबल टू डिलीवर अ हेल्दी बेबी? क्या आपको तकलीफ नहीं होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री पार्टम एंड पोस्ट पार्टम डिफिकल्टीज? क्या आपको नहीं होने वाला है? देखिए जाके, जस्ट सी अराउंड how many difficulties pregnant women are getting into. तो जरा थोड़ा सा समझते हैं. टेक सम सीड्स, कुछ बीज ले लें, राइट, थ्रो इट ऑन मून, कोई दूसरे ग्रह पे चले जाए, वहां पे छिड़क दें. गो ऑन सम अनदर प्लैनेट एंड थ्रो दो सीड्स. विल इट स्प्राउट? क्या उसमें कोपले निकलेंगी? विल इट स्प्राउट? इट विल नॉट स्प्राउट. वेयर विल इट स्प्राउट? इट विल स्प्राउट हियर ऑन अर्थ, पृथ्वी पे. व्हाई? Why? Because there is a life creating ecosystem. जीवन निर्माण करने की का एक वातावरण है. There is a life creating ecosystem. ठीक है ना? ये बात समझ में आता है. Now using this life creating ecosystem, we are actually living. इसको इस्तेमाल करते हुए हम जी रहे हैं. ठीक है ना? इसको इस्तेमाल करते हुए जी रहे हैं. Now every human being is different. दे हैव डिफरेंट कैपेसिटी. हर एक इंसान की कैपेबिलिटी कैपेसिटी अलग होती है. वो किस पे डिपेंड करता है? हाउ मच यू आर यूटिलाइजिंग दिस लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम. इसको कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं. तो एक तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करूं. हु डिजाइन्ड योर बॉडी? आपके शरीर को किसने डिजाइन किया? कौन सी गायनी ने किया था? कौन से डॉक्टर ने किया था? हु डिजाइन्ड योर बॉडी? हु डिजाइन्ड योर बॉडी? Which doctor, which scientist, which engineer designed your body? So nobody designed your body. No doctor, no engineer. God designed your body. God means you don't know. अभी तो God का मतलब क्या है? I don't know. So you are trying to put the onus on God because you don't know. क्या ना, मैंने passing the buck. God is like passing the buck on God. कुछ भी कुछ गड़बड़ है तो God पे कर दो, है ना?
अच्छा, you know, आप जानते हैं, who designed your body, you know. The moment you see a human being, you identify that human being with a place. अफ्रीकन को देखा तो क्या बोलते हैं? अफ्रीकन, इसको अफ्रीकन बोलते हैं। चाइनीज, अब बोलते हैं ना, जानवरों में भी ऐसे नाम लेते हैं ना, ये पहाड़ी, ये हिमालयन लेपर्ड है, ऐसे बोलते हैं। सो यू रिकॉग्नाइज एवरी लाइफ विथ अ प्लेस, जगह से रिकॉग्नाइज करते हैं ना। सो अफ्रीकन बोला, हु डिजाइन्ड हिज बॉडी? अफ्रीका। व्हाट इज अफ्रीका? अफ्रीका इज एन एनवायरमेंट, एक वातावरण है, वातावरण है ना। सो एन एनवायरमेंट डिजाइन्स अ ह्यूमन बीइंग। व्हाट एनवायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ नेचर। वातावरण किसका हिस्सा है? प्रकृति का हिस्सा है, ठीक है। तो प्रकृति ने डिजाइन किया, नेचर डिजाइन दिस बॉडी। तो कैसा डिजाइन है? व्हाट इज द डिजाइन ऑफ दिस बॉडी? व्हाट इज द डिजाइन ऑफ दिस बॉडी? दिस बॉडी इज डिजाइन्ड फॉर नेचुरल फूड, नेचुरल एनवायरमेंट एंड नेचुरल ट्रिगर्स। अभी मैं तीनों को एक्सप्लेन करता हूं। नेचुरल फूड, नेचुरल एनवायरमेंट, नेचुरल ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या होता है अभी बताता हूं। नेचुरल फूड मींस व्हाट एवर ग्रोज इन नेचर, प्रकृति में जो पैदावार होती है उसको। आप सुबह से शाम तक देख लीजिए, आपका खाना प्रोसेस्ड है, इट इज प्रोसेस्ड एंड ऑल्टर्ड, बदला हुआ भोजन है। यू आर नॉट डिजाइन्ड फॉर दिस ऑल्टर्ड फूड। जेनेटिकली मॉडिफाइड है आपका फूड, जीएम क्रॉप, व्हाट यू आर ईटिंग इज जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड थिंग्स, प्रोसेस्ड, पैकेज, प्रिजर्व्ड, कोल्ड प्रिजर्व्ड। दूसरी चीज, नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट, भेड़ को अगर जंगल में राज करा दिया जाए, राजा बना दिया जाए, इफ यू मेक शीप द किंग ऑफ जंगल, व्हाट विल इट डू? क्या करेगी वो पूरे जंगल को खा जाएगी, तहस नहस कर देगी। इफ यू अलाउ शीप टू रूल द जंगल, शीप विल डिस्ट्रॉय द होल फॉरेस्ट एंड जंगल। तो अभी रूल किसने किया 300 सालों में? फिरंगियों ने रूल किया ना आपको, वेस्ट ने रूल किया ना। यू अलाउड शीप टू रूल द वर्ल्ड, दे डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड। यू आर द किंग, आप किंग थे, आप शेर थे, पर आपने क्या सोचा कि नहीं, भेड़ों की ही हम गुलाम बन जाते हैं। सो उन्होंने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। इन द लास्ट 50 years they have made 80% of plants and animals get extinct from the very face of earth. आपका वातावरण प्रदूषित हो गया, बदल गया बिल्कुल। Where is water? Beneath your leg. कहां है पानी? So all the environment got polluted and 80% of plant and animal species, जीव जंतु, पेड़ पौधे extinct हो गए 80% से ज्यादा। So no natural surrounding now. Third thing, is your body designed for medicine? क्या आपका शरीर दवाइयों के लिए डिजाइन हुआ था? नहीं। So are you living in a fool's paradise where you think that you will get better, healthy by taking something from outside? कैल्शियम कमी है ना, कैल्शियम खाते हैं ना, 200% ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है। कैल्शियम तो किसी का नहीं बढ़ा, बोन तो ठीक नहीं हुए किसी के, nobody got arthritis fine or osteoporosis fine. एक बंदा बता दीजिए, टेल मी वन पर्सन हु हैज कम आउट ऑफ डायबिटीज बाय टेकिंग मेडिसिन। दवाई खा के डायबिटीज ठीक हो गई और फिर दवाई नहीं खाई। टेल मी वन केस सिनारियो। ब्लड प्रेशर, कैंसर इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 12%, कैंसर बढ़ रहा है ना, पता नहीं कब आ जाएगा, बिकॉज फ्रॉम योर चाइल्डहुड यू आर टेकिंग मेडिसिन। अरे पेट्रोल गाड़ी को केरोसिन डाल के चलाएंगे क्या? विल यू रन अ पेट्रोल व्हीकल पुटिंग केरोसिन इनटू इट? नहीं। तो वो तो कॉमन सेंस है, बट वेयर कॉमन सेंस गोज when this life comes into picture? So medicine rising, all medicine has increased a lot and disease has increased. दवाइयां बढ़ गई, बीमारियां बढ़ गई। At least open your eyes now. आंखें तो खोलिए। Infertility increasing, infertility बढ़ रही है। Delivery difficulty in delivering babies increasing, postpartum disease increasing. हर एक औरत बीमारी लेके बैठ जाती है आफ्टर डिलीवरी। आपकी मां को देखो, just go to your grandmother and see your grandmother. They would have delivered 5 babies, 6 babies, 9 babies. आप तो एक के बाद ही बीमार पड़ जाते हो।
होता है कि नहीं होता? आंखें तो खोलिए ना कम से कम। डेटा जो सरकार दिखा रही है नहीं जाना, सरकार बेवकूफ है, पूरी दुनिया WHO गधा है, उनको मत देखो, अपने आसपास देखिए। पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंट कम होता है उनका, आप तो ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप तो देखिए ना आसपास में, जस्ट लुक अराउंड, सी योरसेल्फ। सुबह उठ नहीं पाते आप तो, चाय पीनी पड़ती है, कॉफी पीनी पड़ती है, तब जाके कुछ नींद खुलती है, या सोटा लगाना पड़ता है किसी को। आंखें तो खोलनी पड़ेंगी आपका। तो विल यू बी एबल टू डिलीवर अ हेल्दी बेबी? अगर दुनिया में बीमारियां बढ़ रही है, एक रीजन तो वो बता दिया मैंने, भेड़ को आपने राज करने दिया तो उन्होंने सबको बर्बाद कर दिया। बट आज भी नहीं खोलेंगे तो विल नॉट बी एबल टू डिलीवर बेबीज। ह्यूमन जीनोम डिस्टर्ब हो रहा है, इट इज गेटिंग डिस्टेबलाइज्ड, ह्यूमन जीनोम इज गेटिंग डिस्टेबलाइज्ड। तो आज आपको समझना पड़ेगा, एटलीस्ट यू विल हैव टू ओपन योर आईज, बिकॉज एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि आपने अलाउ किया, आपने दवाई में इन्वेस्ट किया है। आप कैल्शियम खाते हो, कोई फायदा नहीं करता फिर भी खाते हो। आप आयरन खा रहे हो, यू आर टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन। क्या आयरन कैल्शियम 100 साल पहले कोई खाता था? वॉज एनीबडी टेकिंग दीज मेडिसिन 100 years बैक? क्या 200 साल पहले किसी को डायबिटीज थी? आप तो उन्हीं के बच्चे हैं ना, कहते हैं जेनेटिक्स है, जेनेटिक है, जेनेटिक है। 200 साल पहले तो किसी का नहीं था। हैव वी ड्रॉप फ्रॉम मार्स? दूसरे ग्रह से टपके हैं क्या यहां पे? वी आर सन एंड डॉटर्स ऑफ द सेम एंसेस्टर। उनको तो प्रॉब्लम नहीं थी, हमें प्रॉब्लम है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है। अब जो गलत है उसको बिल्कुल एकदम से ठीक नहीं कर सकते, बट अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं। कैन यू एम्पावर योरसेल्फ? टेल मी। अरे सब कुछ खराब है, बट स्टिल दे आर पीपल हु डू नॉट गेट डिजीज। लाइफस्टाइल होता क्या है? सी अगेन, देखो वेस्टर्न अभी थॉट प्रोसेस छोड़ दो। व्हाट इज लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल ठीक करके ठीक हो जाना चाहिए था आपको, हो गए क्या? एवरीबडी इज ट्राइंग टू फिक्स द लाइफस्टाइल, पर हो गए क्या? हैव यू बिकम फाइन? तो केवल बातें बातें करके काम चलेगा क्या? सो लेट गेट समथिंग प्रैक्टिकल, कुछ तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सो आई कैन टेल यू 10 डिफरेंट वर्ड्स, यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल बताऊं, डू यू नो कार्बोहाइड्रेट? हैव यू सीन कार्बोहाइड्रेट? नहीं, you have not seen carbohydrate. You just try to correlate. आलू में, in rice, carbohydrate is more. Huh? You haven't seen carbohydrate. Does your body say that I need carbohydrate? क्या आपका शरीर कभी बोला सुबह उठ के, अरे 100 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट दे दो, गिव मी 100 किलो कैलोरी कार्ब? बोला आपके शरीर ने? नहीं बोला। बट टॉकिंग दैट लैंग्वेज, you think you are intelligent. Neither you understand a language, nor your body understands that language. ना आप समझ में आता है आपको, ना आपके शरीर को समझ में आता है, बट आपको लगता है कि हम इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं। कम ऑन, अगर इंटेलिजेंट होते तो बीमारियां खत्म हो गई होती दुनिया में से। इफ वी वुड हैव बीन इंटेलिजेंट, वी वुड हैव एटलीस्ट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिजीज। बीमारियों को कम कर, इनफर्टिलिटी बढ़ नहीं रहा होता एट अ वेरी रैम्पेंट पेस। अपने आसपास में ही देख लीजिए, इट इज नाउ डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कंसीव। Forget about delivering a good baby. It is even difficult to conceive. ये हमारे साथ ही होने वाला है, किसी और के साथ नहीं होने वाला. Don't think that. It will happen to your kids if you do not deliver an empowered kid. तो क्या करना पड़ेगा? Let's get practical. हवाबाजी नहीं करते. Let's get practical. Every one of you is responsible for what is happening in the future. What will happen in the future? You are responsible. Especially mothers. हमारे देश में तो कहते हैं कि दिस होल यूनिवर्स इज शक्ति, दिस इज फेमिनाइन, गॉड इज फेमिनाइन, द एक्टिव गॉड इज फेमिनाइन, मैस्कुलाइन इज नॉट इवन एक्टिव। तो स्पेशली फीमेल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, यू मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करना पड़ेगा? एम्पावर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हाउ टू एम्पावर आवरसेल्फ? तो पहले एक चीज समझते हैं कि कुछ तो है हमारे अंदर जिसके जरिए हम एटलीस्ट ऑन द फिजिकल, सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन द फिजिकलिटी ऑफ इट। आपको वहीं से समझ में आता है ना? किसी सफेद कोट पहने हुए इंसान को आप इंटेलिजेंट मानते हो ना?
आप भी पहन लो ना सफेद कोट, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, आप गलत तरीके से देख रहे हो। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट व्हाट इज द स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म ऑफ दिस बॉडी। शरीर की शक्ति पैदा करने का तरीका क्या है, स्ट्रेंथ बनाने का तरीका क्या है? आप लोगों में से किसी ना किसी, सबके कोई ना कोई एक हाथ मजबूत होगा ना। वन हैंड इज मोर स्ट्रांग देन द अदर, है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? कैसे किया? कैसे किया? हाउ डिड यू मेक वन हैंड स्ट्रांग? कैसे कर लिया? तो थोड़ा सा समझें, व्हाट इज द स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म ऑफ दिस बॉडी। शरीर का स्ट्रेंथ क्रिएट करने का मैकेनिज्म क्या है? सी वट एवर वीकनेस यू हैव, उसको अगर ठीक करना, ईदर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एनर्जी वाइज और स्पिरिचुअल, 5 लेवल पे बता रहा हूं मैं आपको। ये 5 लेवल की जरूरत नहीं, हम केवल एक ही पकड़ेंगे। यू विल अंडरस्टैंड ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो, आपको बाकी भी समझ में आ जाएगा। सो देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्रिएट करने का मैकेनिज्म क्या है। लेट्स टॉक अबाउट फिजिकलिटी फर्स्ट, फिजिकलिटी की बात करें, राइट? सो देखते हैं हम स्ट्रेंथ कैसे पैदा करते हैं। कीप योर लेफ्ट हैंड लाइक दिस, अपना बायां हाथ ऐसे रखें। मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं हाथ से मुट्ठी बांधे। मेक फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं हाथ से मुट्ठी बांधे एंड पुश योर लेफ्ट पाम। पुश कीजिए, जोर लगाइए, पुश इट हार्ड, एज हार्ड एज पॉसिबल। यू आर क्रिएटिंग स्ट्रेंथ, आप शक्ति पैदा करें। मगर कैसे पैदा कर रहे हैं? हाउ आर यू क्रिएटिंग द स्ट्रेंथ? कैसे कर रहे हैं? अभी देखिए, आपका एजुकेशन आपके सामने आएगा बहुत। इट विल नॉट लेट यू सी थिंग्स क्लियरली, ये आपको सही चीज देखने ही नहीं देगा। मसल्स, बोन्स, नर्वस सिस्टम, माइंड, दिस दैट, यही सब आ रहा होगा, यही आ रहा होगा आपके दिमाग में 100%। दिस इज योर एजुकेशन। और मैं आपको असली चीज दिखा रहा हूं अब। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द राइट थिंग, ठीक है ना? सो लेट्स डू इट अगेन, वेर एवर आई एम इंडिकेटिंग, जस्ट लुक देयर, जहां भी मैं बता रहा हूं वहां देखना। लेट्स डू इट अगेन, दिस टाइम एवरीबॉडी शुड डू इट। करके पता चलेगा, सोच सोच के आज तक ना बहुत बरगलाया है लोगों ने आपको। डू इट, करें, पुश इट हार्ड, रियल हार्ड, पुश इट रियल हार्ड। देखिए, जितना आपको पुश करना होता है उतनी सांस रोकनी पड़ती है। The more you have to create strength, you have to hold proportionally that much. उतनी सांस रोकनी पड़ती है जितनी शक्ति क्रिएट करनी पड़ती है। अच्छा, क्लास कीजिए फिंगर्स को ऐसे करके, क्लास योर फिंगर्स, पुल इट, खींचिए। पुश करने के लिए भी सांस रोकनी पड़ती है, पुल करने के लिए भी सांस रोकनी पड़ती है। इवन टू पुल यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ, राइट? जंप करने के लिए भी सांस रोकनी पड़ती है। हाँ, इवन इफ यू हैव टू गेट अप फ्रॉम द चेयर, चेयर से उठते हैं, कैसे उठते हैं? हाउ डू यू गेट अप फ्रॉम चेयर? व्हाट डिड यू डू? यू होल्ड योर ब्रेथ। क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ। सुबह सुबह अंगड़ाई लेते हैं, मॉर्निंग यू गेट अप, यू यॉन एंड टेंस योर बॉडी, अंगड़ाई लेते हैं। हाउ डू यू क्रिएट दैट एनर्जी? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। सांस लेके रोक लेते हैं, शरीर को टाइट करते हैं। योगा, जुम्बा, वॉकिंग, जॉगिंग, हाउस होल्ड वर्क, कोई भी काम करें आप, देयर इज अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड व्हिच गोज बिहाइंड। अलग अलग अनुपात में सांस रुकेगी, तभी आप एफर्ट लगा पाएंगे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वॉलंटरी एफर्ट जो आपके कंट्रोल में है। वॉलंटरी एक्शन की बात कर रहा हूं, फिजिकलिटी की बात कर रहा हूं। अभी ध्यान से सुनिए, हाउ डू यू क्रिएट फिजिकल स्ट्रेंथ? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। अब लिफ्ट योर स्ट्रॉन्ग हैंड अप, अपना शक्तिशाली हाथ जो है ऊपर उठाएं, जो भी स्ट्रॉन्ग हैंड है ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं। टेंस इट टाइट, टाइट कर ले, टेंस इट टाइट। सी यू होल्ड योर ब्रेथ एंड गिव दैट होल्ड अ डायरेक्शन। आप सांस रोकते हैं और सांस रोकने को एक दिशा दे देते हैं उस हाथ की तरफ। When you worked with this hand, strong hand, आपने ज्यादा काम किया ना, that's how you made it strong. What did you do? Whenever you work, you held your breath in the variable proportion and directed it towards the strong hand. उसकी तरफ में दिशा दे दी आपने। That's how you made one hand and one leg strong. इसी तरीके से तो बनाया आपने, है ना? जिम जाते हैं लोग, मसल्स बिल्ड करते हैं ना। People go to gym and build muscles. I am just talking about physical aspect. अभी दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बताता हूं मैं।
People go to gym and build muscles. How do they build muscles? By lifting weight. Weight उठाते हैं. By lifting weight they build muscles. But how do they lift weight? Weight कैसे उठाते हैं? By holding their breath and use their muscles. दो तरीके से वेट उठाते हैं. मसल को इस्तेमाल करते हैं, ब्रेथ होल्ड को इस्तेमाल करते हैं. So the direction of breath hold goes towards muscles. Weight is just a directional thing. Weight तो डायरेक्शन देता है ब्रेथ होल्ड को मसल की तरफ ले जाने के लिए. That's how muscles get built. So any kind of strength in your body, in your voluntary actions that you take, the strength creating mechanism is breath hold. Now एक काम कीजिए, don't move your body, just hold your breath. थोड़ी देर के बाद क्या होगा? You'll start sweating, your heartbeat will increase, आपके अंदर गर्मी बढ़ जाएगी. So now the breath hold's direction is not outside. कहां है ये? It is inside you. But अभी मालूम नहीं है इसको डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं कहीं पे. You can actually direct it towards your heart and make it strong. You can direct it towards the liver and make it strong. Liver पे, heart पे, nervous system पे, metabolism पे, नर्व और lungs पे, lung capacity बढ़ानी है किसी को, कोरोना में तो बढ़ाने की जरूरत है. We have done programs of Kumbhak for corona people and they recovered much faster without medicine. मेडिसिन खाएंगे तो मरने के चांस होंगे. कोरोना में मेडिसिन नहीं खाना. योर बॉडी विल रिकवर फास्ट. 3 दिन में ठीक हो जाता है. मेडिसिन खाओगे तो फिर स्टीरॉइड भी लगेगा, आगे चल के पता नहीं क्या. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ब्रेथ होल्ड से आप वॉलंटरी फंक्शन, अपने फिजिकलिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं. ब्रेथ होल्ड से आप इनवॉलंटरी फंक्शन को स्ट्रांग बना सकते हैं. इनवॉलंटरी फंक्शन स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? योर स्पोर्ट्स टैलेंट और योर टैलेंट टू होल्ड थिंग्स, कंट्रोल थिंग्स विल इंक्रीज. आप ज्यादा झेल पाएंगे, इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी, बीमार नहीं होंगे. आसपास में लोग बीमार हो जाएंगे, आप बीमार नहीं होंगे. You will not get into chronic disease, diabetes, hypertension, heart disease, kidney disease, liver disease, blood pressure issues, lung problem, asthma, allergy. 70% प्रॉब्लम क्रॉनिक होता है जिसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में. वो आपको नहीं आएगा बिकॉज योर इनवॉलंटरी फंक्शंस. आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा. आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा इफ योर बॉडी इनवॉलंटरी एक्शन और फंक्शनिंग इज स्ट्रांग. दैट्स व्हाट योर बेबी विल गेट. वही एनवायरमेंट तो बेबी को मिलने वाला है. तो आप जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं. You can create a strong environment for your baby. Involuntary environment. अच्छा एक बात बताइए, if you just want to see something very clearly, अब देखिए, just ये भी एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं मैं. अब आई एम गोइंग मोर सटल, थोड़ा सटल जा रहा हूं मैं. राइट? सपोज यू क्लाइंब अ लिटिल हिलॉक, छोटी पहाड़ी को चढ़ गए या घर के ऊपर चढ़ गए. And try to look at someone who is standing very far off. बहुत दूर एक इंसान खड़ा है, उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं. आंख बंद कर कीजिए और जस्ट इमेजिन कीजिए ऐसा. आंख बंद कीजिए, just close your eyes and imagine a person standing very far off. And you are trying to recognize that person. How do you keep yourself? अगर उस इंसान को ध्यान से देखने के लिए अपने आप को कैसे रखते हैं आप? देखिए, अपने आप को देखिए, कैसे रख रहे हैं आप? आंखें खोलिए, अपने आप को स्थिर कर देते हैं. यू स्टिल योरसेल्फ. स्थिर कर देते हैं. यू रिलैक्स योर ब्रेथ, मेक इट स्लो, समटाइम्स होल्ड इट. जब भी आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप सांस रोक लेते हैं फोकस क्रिएट करने के लिए. सो कैन यू इंक्रीज योर फोकस, कॉन्सेंट्रेशन? हाउ डू यू इंक्रीज योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन? आज तक तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा आपने. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, देयर इज नो अदर वे. प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं. व्हाट इज इंटेलिजेंस? द मोर यू कैन ऑब्जर्व, द ऑब्जर्विंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस. ऑब्जर्व करने के लिए कैसा चाहिए? अपने आप को स्थिर करना पड़ता है. फॉर दैट यू रिक्वायर एनर्जी. जिनको हाइपर एक्टिविटी है ना, टिक नहीं सकते एक जगह. हाइपर एक्टिविटी, नो, लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग हाइपर एक्टिविटी टुडे. इवन किड्स, ADHD, attention deficit and hyperactivity disorder.
Out of 10 kids, 4 kids have clinically proven ADHD. 10 में से 4 बच्चों को तो अभी क्लिनिकली प्रूवन है, एक्चुअली ज्यादा है. Out of 10 kids, almost 8 kids, 8 बच्चों को ADHD है. Do you want your kid to have ADHD? वही जाके बाद में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी से क्या होता है, मेंटल इश्यूज, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं. डू यू वांट योर किड टू बी दैट? नहीं चाहते ना. व्हाट आर यू डूइंग फॉर इट? क्या कर रहे हैं? सो यू नीड टू इंक्रीज योर एनर्जी. अपनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, तब देन ओनली यू विल बी एबल टू बी स्टिल. फोकस तभी होता है, कंसंट्रेशन तभी होता है. जो इंसान की ऊर्जा कम होगी ना, वो स्थिर नहीं रह पाएगा कभी. सो उल्टा सोच रहे हैं, जिसकी ज्यादा एनर्जी हो ज्यादा हिलेगा. नहीं 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 नहीं, यू आर गेटिंग इट रॉन्ग, ऑल रॉन्ग. इन योगा, the yogis actually prepare their body for many years just to remain still for 4.5 hours. उनको इतनी एनर्जी, ऊर्जा इकट्ठा करना पड़ता है. सो इंटेलिजेंस बढ़ा रहे हैं अपना. आर यू इंक्रीजिंग योर मेंटल कैपेसिटी? मेंटल कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं अपना? क्या कर रहे हैं? यू आर नॉट डूइंग इट. देन यू विल गेट इनटू डिप्रेशन, बाइपोलैरिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, मूड स्विंग्स. बाद में चल के क्या, मेनोपॉज रिलेटेड इश्यूज, हार्मोनल इंबैलेंस. पर इसका कोई इलाज नहीं है. लेट मी टेल यू क्लियरली, कोई इलाज नहीं है. आपको नंब कर देंगे, बेहोश करने की कोशिश करेंगे गोली खिला के, सो दैट यू रिमेन सेन. ये एम्पावर करके ही आएगा. देयर इज नो अदर वे. गेट इट वेरी क्लियर. आपको ट्रेनिंग अलग मिल गई है, दूसरी दुनिया में जी रहे हैं. लेट अस गेट बैक टू अ रियल वर्ल्ड. असली दुनिया में आते हैं. सो फोकस बढ़ाना है, तब भी क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू ट्रेन योर बॉडी. एंड दिस ब्रेथ होल्ड, ये तो एक होल्ड के बारे में बता रहा हूं मैं. कुंभक मीन्स होल्ड. कुंभक का मतलब होता है रोकना. व्हाट रोकना? थॉट को रोकना. टू होल्ड अ थॉट इन योर माइंड, टू होल्ड इमोशन इन अ प्रॉपर वे इन योर हार्ट, टू होल्ड योर एनर्जी एंड क्रिएट अ हायर एनर्जी इन योर सिस्टम. आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को? व्हेन यू हैव हाई एनर्जी इन योर सिस्टम. कुंभक कैन डू दैट. कुंभक से होगा. ये तो मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करने के लिए. इफ यू डू कुंभक एंड डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, you will see your performance will increase, your efficiency will increase. Not only physical, functional, यानी involuntary functions, mental, emotional imbalance नहीं होगा. And you can increase the emotional capacity. उसको बहुत बढ़ा सकते हैं. You can increase your energy. You can increase the spiritual quotient also. अभी कहते हैं मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, किसी से होता नहीं, सब फैड है मेडिटेशन. So unless until you have that kind of energy in you, you cannot do meditation. Meditation happens on its own. करने की जरूरत नहीं होती. So what is गर्भ संस्कारा? क्या है? आपको अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने का तरीका सिखाया जाएगा. आपको वो करना चाहिए. Whatever else you do, this is something that you must do. Not only this is not just about your physical and other subtle bodies, but also environment. आप अपने environment को कैसे empower कर सकते हैं? Empowerment training कह रहे हैं हम इसको. What you do in the nearby environment, what kind of food, how to take the food, not food diet plan. कोई diet plan हम नहीं देते. ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, ऐसा कुछ नहीं देते. आप जिसके लिए डिजाइंड है वो आपको आंखें खोलते बताते हैं. So different stages at different time periods of pregnancy. First trimester में कैसा स्थिति होती है, उसके हिसाब से we mold your practices, your food habits. Second में कैसे, third में कैसे करना है, how you can deliver naturally without a cesarean intervention, कैसे कर सकते हैं. This is कैसे आपको बाद में चल के कोई बीमारी नहीं आएगी. You can create or you can give birth to a very very talented kid who can take charge of the whole world. वो दुनिया को सिखाए, एक डायरेक्शन दे. ये आपकी जिम्मेदारी है. आप भी चाहते हैं ना इंडिपेंडेंट बेबी, आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं, आपके ऊपर नहीं डिपेंड करें. तो आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? IQ, हाई IQ बेबी,
HQ तो हैप्पीनेस क्वोशंट। आज तो खुश ही नहीं हो पाते बच्चे। SQ स्पिरिचुअल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, कैसे हाई करें, कैसे हाई बनाए। और कोई तरीका नहीं है, लेट मी टेल यू कैटेगरिकली। आप सोचते हैं ना कोई मैजिक मेडिसिन मिल जाएगा आपको, नहीं होगा। आप जितना मैजिक मेडिसिन मिलेगा उतना शरीर खराब हो जाएगा, जितना मेडिसिन में खाओगे उतना शरीर खराब हो जाएगा। 100% गारंटी, प्रॉब्लम आने ही वाली है। बिना एम्पावरमेंट के कुछ नहीं हो सकता, और सब बाकी ख्याली पुलाव हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता उसके लिए। मगर मैं यही कहना चाहता हूं कि प्लीज आंखें खोलिए। ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, आपके लिए जरूरी है, एक्चुअली सबके लिए जरूरी है। सो कुंभक थेरेपी, दिस इज वन थिंग दैट वी डू। ये हम एक चीज करते हैं इस गर्भ संस्कार के प्रोग्राम में। सो वी डायग्नोज यू, हम आपको डायग्नोज करते हैं, हम आपको डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज किस चीज के लिए करते हैं? जैसे मैंने बताया, एज आई स्टार्टेड विद, देयर इज अ लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम, जीवनदायिनी व्यवस्था है। इसको हम एक्चुअली गॉड कहते हैं। आपके गॉड पता नहीं कोई ह्यूमन बीइंग दाढ़ी वाला गॉड है, शायद ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में। लेट मी टेल यू कैटेगरिकली, ये लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम, ये जो जीवनदायिनी व्यवस्था आपके चारों ओर है, जिसके सांस, जिसको सक करके आप जिंदा रह रहे हैं, दिस इज गॉड। ये इकोसिस्टम ही ईश्वर है। हम अपने इस कल्चर में ईश्वर कहते हैं। इन इंडिया देयर इज नो गॉड, द गॉड, कोई भी गॉड नहीं है। ये ईश्वर इज द लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम। एवरी मोमेंट यू आर सकिंग दिस लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम टू सर्वाइव। सो इसमें 84 फैक्टर्स हैं विच यू यूटिलाइज। देयर आर 84 कैपेसिटीज ऑफ योर बॉडी, 84 फैक्टर्स हैं। एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ग्रेविटी नीचे खींचती है ना सबको, ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग डाउन, है ना। व्हाई डू यू ग्रो टॉल? आप क्यों ऊपर उठ गए? आप तो लंबे हो गए, इतने से थे, उसके बाद लंबे होते होते इतने बड़े हो गए, उल्टे। यू हैव गॉन अगेंस्ट ग्रेविटी। व्हाई डू ट्रीज ग्रो अप? एक पेड़ पौधा ऊपर क्यों उठ जाता? व्हाई बर्ड्स फ्लाई? अगर ग्रेविटी नीचे खींचता है तो वो ऊपर कैसे उड़ रहा है? यानी दे आर यूजिंग सम फैक्टर विच इज अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। दे आर यूजिंग अ फैक्टर विच इज अगेंस्ट ग्रेविटी। दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज उदाना। तो सपोज कीजिए आप, उदाना फैक्टर इज अवेलेबल अक्रॉस अर्थ। लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम का, जीवनदायिनी व्यवस्था का एक एस्पेक्ट क्या है? उदाना। ठीक है, आप उदाना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे ठीक से। यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज उदाना प्रॉपरली, दिस अपवर्ड मूविंग फोर्स, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? आपका शरीर में भारीपना होगा, यू विल फील हेवी इन द बॉडी, यू ऑल्सो विल फील हेवी इन द माइंड एंड इमोशंस। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? आपको मालूम है ना, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। कभी डिफाइन किया स्ट्रेस को? मैं आपको डिफाइन करके दे रहा हूं स्ट्रेस को। अपवर्ड मूविंग फैक्टर को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, सो यू आर फीलिंग हैवी इन द बॉडी एंड माइंड। शरीर में हैवीनेस आ रहा है, दिमाग में हैवीनेस आ रहा है, उठने में भी तकलीफ हो रही है, किसी काम को करने का मन नहीं करता, मजबूरी में करना पड़ रहा है। यू आर डूइंग थिंग्स आउट ऑफ रिक्वायरमेंट, आउट ऑफ वेरी वेरी नेसेसिटी। खुश होके, स्माइल कहां गई आपके चेहरे से? स्माइल गायब हो गई है। सो यू आर नॉट एबल टू यूज दिस उदाना फैक्टर। तो अगर हम आपको एम्पावर करें उदाना फैक्टर को यूटिलाइज करने के लिए, इफ यू एम्पावर यू टू यूज दिस उदाना प्रॉपरली, व्हाट विल हैपन? Suddenly you'll start smiling. Suddenly you'll feel light in the body and mind. शरीर हल्का लगेगा, माइंड हल्का लगेगा, you'll start celebrating. तो मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, हवाबाजी नहीं है इसमें कुछ भी। Right? So Kumbhak therapy is something we diagnose you for 84 different. There are 84 factors. आपके अंदर कौन सा फैक्टर वीक है, so आपके टैलेंट कौन से कम है, कमजोर हैं, what disease you can get into in future, ये सब हम पता कर सकते हैं by doing a diagnosis. This is one of its kind of a diagnosis in the whole world. दुनिया में अपने तरीके का इकलौता डायग्नोसिस है।
So we diagnose you, empower you accordingly. आपको हम एम्पावर करते हैं, कुंभक थेरेपी डिजाइन करते हैं फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. दिस इज कस्टमाइज्ड. Every trimester it changes. Every trimester the food changes. How do you keep your externity? How you behave? किस तरीके से एक्शन लेने हैं आपको, वो सब बदल दिया जाता है. वो उसका हम क्रक्स आपको बताते हैं. This is how we go about doing Garbha Samskara program. Diagnosis and empowering. Kumbhak method. Apart from Kumbhak method, there are rasayans that we use which are very kind of a secret thing, जो कि केवल people who come to the program we only suggest them. उन्हीं को केवल बताते हैं, because we don't have a window of making it in bulk, which is pro life not anti life. वो pro life है, वो आपको empower करेंगे और भी. So this is our responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे बेबीज को डिलीवर करें. उसके लिए let us train ourselves, let us create capabilities, let us build the strength and live our life beyond our imagination. अपनी imagination से भी अच्छी life जी सके हम. Right? Don't get, and we should not get into, we should be protected from all these corona and chronic disease and infection and rest of the things which is happening like epidemic. So let us take this responsibility. I'll stop here. The team will take it forward. Team आगे ले जाएंगे. Thank you, Rajvibhu ji. आपके समय के लिए thank you so much. So people are getting impatient. अब एक चीज बताइए, मम्माज इम्पेशेंट होंगी तो बेबी कैसे पेशेंट होंगी? बेबी कैसे काम और सूदिंग और नाइस हैप्पी होंगे? 2 मिनट में सिर्फ मैगी बनती है, राजमा राइस नहीं बनता है ना. सो ईच गुड थिंग नीड्स सम टाइम. सो व्हाटएवर यू डू विथ योरसेल्फ, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम, बट व्हाट यू आर डूइंग विथ योर बेबी मीन्स अ लॉट फॉर अस. So, who all wants to know about the program? कौन है जो जानना चाहता है कि इतनी पावरफुल टेक्निक को कैसे सीखा जा सकता है? कैसे आप अपने बेबी को और खुद को भी डिलीवरी के बाद एकदम एम्पावर, वापस उसी शेप में, ज्यादा हेल्थी, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्ट्रेंथन और ज्यादा हैप्पी बना सकते हैं? एग्जैक्टली. सो जस्ट गिव मी 2 more minutes. Yeah, so thank you Swamiji, thank you once again. Now itni sari baaton se now we know that the process called Garbha Sanskar is not a single day workshop. It cannot be some imaginary theory of manifestation. It should not be an artificial process, and please don't make it a hit and try method, because it is about life. So every pregnancy is different in the lady's experience. So it cannot be the same experience for all, and it cannot be the one size fit all method. Okay, so our program structure for Garbha Sanskar is, see, we are here in the webinar. Once you enroll, you will be given a basic session. Basic कुंभक सिखाया जाएगा, क्योंकि कुंभक अपने आप में इतना ज्यादा पावरफुल मेथड है. हम आपके साथ अचानक से शुरू नहीं कर सकते. पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप एडवांस लेवल का कुंभक कर सकें. ठीक है. तो बेसिक सेशन के बाद हम आपके साथ एक फॉर्म शेयर करेंगे. उसमें आपका कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आप हमें भर के देंगे, और उसके बेसिस पे आपका मॉड्यूल जो है, जो कि आपने फर्स्ट सेशन में सीखा, वो फाइन ट्यून होगा आपके हिसाब से, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस के हिसाब से, आपके ट्राइमेस्टर के हिसाब से. सब कुछ हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग मॉड्यूल और प्रोसेसेस दी जाएंगे. उसके बाद फॉलो अप सेशंस होंगे. और क्या होगा? पूर्णिमा सेशंस होंगे. आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को हम नहीं छोड़ सकते, इतनी बड़ी रिस्क हम नहीं लेंगे. तो आपके फिजिकलिटी के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कुंभक स्पिरिचुअल सेशंस होंगे, पूर्णिमा सेशंस होंगे, हट कुंभक दिया जाएगा, आपको फूड एस्पेक्ट बताया जाएगा, आप में लाइफस्टाइल चेंजेस बताई जाएगी. बहुत सिंपल छोटी चीजें जो कि इतनी पावरफुल है कि आप अपने घर का, अपने आसपास का और अपने अंदर का माहौल पूरी तरह बदल सकते हैं. यू कैन मेक इट मोर कंड्यूसिव फॉर योर बेबी इन यू, बिकॉज he or she is totally dependent on you, and you need to be
you need to be so much responsible to take each and aspect of his or her growth into consideration. Okay, so in short, there will be total 8 sessions in every 3 months. In each trimester, 8 sessions होंगे, in which 3 are main Kumbhak sessions, 3 are Purnima sessions, 2 are follow-up sessions, plus there will be mentor support and practice sessions also, as and when needed by the batch. The program, when we are starting on 19th April, this Monday, morning 7 to 8:30 a.m. Each session duration would be 90 minutes plus question answer session. Also, the second session, the customization session will be on 26th April. Follow-up session would be on 17th May. In between these, there will be practice sessions, there will be Purnima sessions, and many recordings and knowledge about other things will be shared. Okay, so now the thing is what you will get. You will get customized individual Kumbhak module for each and every individual. You will get the course material. That means you will get the recorded session of each video, each class, plus written instruction. जो भी आपको प्रोसेस सिखाई जाएगी उसका वेल रिटन इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा. स्पिरिचुअल सेशन मिलेंगे आपके लिए. रेयर रस रसायन अवेलेबल करवाया जाएगा. प्रीमियम सपोर्ट रहेगा व्हाट्सएप पे, फोन कॉल पर, वीडियो कॉल पर हमारे साथ, मेंटर्स के साथ. लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे, ग्रुप लर्निंग होगी, सारी मम्मा साथ में सीखेंगी, शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी टिप्स, अपनी कहानियां, और सेलिब्रेट भी करेंगे हर दिन साथ में. साथ ही डाइट पर्सपेक्टिव रहेगा, हठ कुंभक रहेगा जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी को, आपकी फिजिकलिटी की टेक केयर करेगा. सो दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल गर्भ संस्कार program. This is Medini's Garb Sanskar, which is a complete package of health for you and your baby. Now, how to join? There are 3 trimesters in a pregnancy. So, if you are running in the 2nd month, you can take the complete package for 9 months. Okay. If you are running in the 4th month or 5th month, you can take the package for 2 trimesters. If you are in the 7th or 8th month, you can take the single trimester package. So the original cost for first 1 trimester, 2 trimester and 3 trimester is 8,000, 12,000 and 18,000 correspondingly. But if you are able to enroll before 2 PM tomorrow, कल दोपहर 2 बजे से पहले अगर आप एनरोल करते हैं तो ये कॉस्ट आपके लिए होगी. 1 ट्राइमेस्टर की कॉस्ट है 6,000. 2 ट्राइमेस्टर के लिए बुक करते हैं तो 11,000 हो जाएगी. दैट मीन्स यू आर सेविंग 1,000. और उसके बाद अगर आप तीनों ट्राइमेस्टर के लिए एनरोल करते हैं एक साथ तो यू विल बी सेविंग अ लॉट मोर with complete enhancement of you as a person, as a personality and your kid. So it will be 15,000. So when we are starting the program, payment option, and let me share the handout with you. We will also be sharing the payment options are shared here. And just a minute, let me share the handout with you. There will be all the details about the payment, about the date, etc. in the handout. Also, you will be able to pay by Google Pay or by Paytm. I have shared it in the chat here, and it will be also shared in the WhatsApp group. So Paytm number is 8527957776. Same number can be used for Google Pay also. Now there will be 4-tier support mechanism. There will be program mentors in the session. We will make sure that you are doing it correctly. WhatsApp पे support होगा. You will be added to a class group जिसमें साथ में सारी information share की जाएगी. फोन कॉल पर अवेलेबल है हम, वीडियो कॉल पर भी अवेलेबल है. क्लास एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं निकलना है. कोरोना पेंडेमिक है. डोंट स्टेप आउट. नो नीड टू वियर मास्क एट होम. अपने कंफर्ट लेवल पे बैठिए. हम आ रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देने. आपके लिए गाइडेड सेशन होगा, आपके लिए आपकी कन्वीनियंस पे. आप रिकॉर्डिंग चाहे जितनी बार अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं.
Also, we will make sure that you are doing it correctly. We will be sharing the session recording. We'll be sharing the written instructions, and we'll make you do. We'll invite you in a practice session or practice correction session and follow-up session to make sure that you are doing it correctly. Okay. So again, दिस इज द कंप्लीट पैकेज. देखिए, इंडियन कल्चर में बच्चे जाने जाते हैं अपनी मम्मा के नाम से, कौनते, राधे. तो इसीलिए जस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेक श्योर दैट योर बेबी एंड यू आर इन द परफेक्ट हेल्थ कंडीशन एंड यू इवॉल्व सो मच कि आप इस प्लानेट को, इस ह्यूमैनिटी को कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत पावरफुल दे पाए. Now again the program starts on 19th April. You need to enroll. कल दोपहर 2 बजे के पहले एनरोल कीजिए, अपनी सीट बुक कीजिए, केवल अपने लिए नहीं, अपने बेबी के लिए और अपने फैमिली को टेंशन फ्री करने के लिए. Now these are our contact numbers. We are admins in WhatsApp group also. You can email us at medinicareinfo@gmail.com and this is our website medinicare.com. Now I'll open the session for question answers. You can unmute yourself and ask your question. Feel free to ask any question that you feel is important for you. For preconception, we have another program called Garbhadhan. उसके लिए आप हमसे अलग से contact कीजिए. Please unmute yourself. Yeah, Amita ji, you want to ask any question? You have raised your hand. Yeah, Nidhi Shah is asking. She has thyroid earlier, and some people are. अच्छा, Amita ji has asked to do bed rest. क्या वो कर सकती हैं कुंभक? If you can sit, you can do कुंभक. अगर आप बैठ सकते हैं तो आप कुंभक कर सकते हैं. बेड पे बैठ के कर लीजिए. It doesn't matter. अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप कुंभक कर सकते हैं. How to take care of baby in 7th month? जब जागो तभी सवेरा. Start the process because 6 months have gone. आपके पास में थोड़ा टाइम बाकी है, उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है. But you will have to take the responsibility. करना पड़ेगा कुछ. देखिए, स्वामी जी का कहना है कि 21 दिन पर्याप्त होते हैं काफी चीजों को बदलने के लिए. तो अगर आप 7th मंथ में हैं तो आप सिंगल ट्राइमेस्टर का पैकेज लीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आगे वाला टाइम इतने अच्छे से यूटिलाइज हो कि आप अपने आप को और अपने बेबी को काफी कॉम्प्लिकेशन से बचा सके. मैम, आई एम कोविड पॉजिटिव. विल यू प्लीज गाइड व्हाट टू डू? Anybody who is COVID positive, आप ध्यान दीजिए, आपको दवाई नहीं खानी है. नो मेडिसिन एट ऑल. आप एक बात बताइए, ह्यूमन बॉडी हैज सर्वाइव फॉर मिलियंस ऑफ ईयर. लाखों सालों से है ना ह्यूमन बॉडी. 50 साल से दवाई आई है. मेडिसिन हैव कम फ्रॉम द लास्ट 50 years. दिस बॉडी नोज व्हाट टू डू. तो ये अपना टेम्परेचर बढ़ाता है. व्हेनेवर इन्फेक्शन हैपन, कोई बाहर से चीज वायरल होता है तो टेम्परेचर बढ़ाता है अपना बॉडी. उसको खत्म करने के लिए आप क्या करते हो? उस टेम्परेचर को डाउन कर देते हो. तो ये तो गलत काम कर रहे हैं ना. आप अपने सैनिकों को लड़ने भेजोगे हाथ पांव बांध के. सो लेट द टेम्परेचर राइज. इट इज नॉट बैड. टेम्परेचर बढ़ सकता है. थोड़ा ठंडी पट्टी पहले भी तो करते थे. थोड़ा ठंडी पट्टी करके कम कर लीजिए. फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज ड्रॉप कुक्ड फूड. कोई पका हुआ खाना खाओ ही मत. फ्रूट्स, जूसेस, नारियल पानी, उस पे आ जाओ. 2 दिन आ जाओ, तीसरे दिन ठीक हो जाओगे. If you come to fruits, juices, nariyal pani, this kind of thing, 3rd day you will be fine. Don't take medicine. Medicine नहीं लेना है. Let the temperature rise. 102, 103, 104, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठंडी पट्टी डालो, कपड़े से पोंछ लो, रिलीफ मिलेगा आपको. एक दिन फीवर रहेगा, दूसरे दिन ठीक हो जाएगा. बट कंप्लीटली ड्रॉप योर कुक्ड फूड. पका हुआ खाना बिल्कुल ड्रॉप कर दो. ठीक है. थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर जाता है, नीचे आता है, थोड़ा 2-3 बार आएगा, उसके बाद ये फिट हो जाएगा. 2 दिन बाद, तीसरे दिन ये ठीक हो जाता है. इफ यू कम टू रॉ फूड, फ्रूट्स एंड जूसेस और नारियल पानी जैसे पे आ जाए,
और दवाई नहीं खाएं। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू टेक मेडिसिन इट विल टेक मोर टाइम, और हो सकता है अगर आप कॉम्प्रोमाइज हैं तो और मुश्किल हो जाएगी। मेडिसिन नहीं लेना तो क्या है, शक्ल किसकी नहीं देखनी, हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखनी, डॉक्टर की शक्ल नहीं देखनी। अपशकुन होता है, कोरोना में अपशकुन है, ठीक है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये दो चीजों के अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल शेयर अ इम्यूनिटी मॉड्यूल विच इज अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप वो देख के करें, आपको और सपोर्ट मिलेगा और जल्दी निकल जाएंगे। राइट, वी हैव अ कुंभक इम्यूनिटी मॉड्यूल which we can share, the link we can share in the WhatsApp group also, उसमें शेयर कर देंगे, आप वो देख के कीजिए, इट्स अ वीडियो, आप देख के कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। I did not have thyroid earlier. Now I got thyroid along with pregnancy. Is it because of pregnancy? Sometimes it is because of pregnancy, because see, it should not be, आपका प्रेगनेंसी तो हेल्दी होना चाहिए, बट बिकॉज देयर आर सर्टेन वीकनेसेस दैट वी हैव बीन क्रिएटिंग, हम इस ह्यूमन बॉडी को वीक करते ही जा रहे हैं। So nowadays it is seen कि the moment a lady gets pregnant, she gets into difficulty, है ना। तो अभी क्या करना है आपको, अभी एम्पावर करना है, थायराइड से निकलना है, इस वक्त ही निकलना है। जस्ट एम्पावर योर सिस्टम, एम्पावर योर इनवॉलेंट्री ऑर्गन फंक्शनिंग, उसको एम्पावर कीजिए, स्टार्ट डूइंग कुंभक। In case of IVF, can we go for this session? As in IVF, we are limited with many positions. Whatever else you do, we don't care, आप करते रहिए। we will never tell you to not do or do that, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। whatever you do, see, one German lady joined from Germany, she was suffering from cancer, 2 साल के अंदर उसका कैंसर इतना होगा, she is now in palliative therapy, वेट कर रही है मरने के लिए। दिस इज नॉट बिकॉज अगर उसको छोड़ देते ना, वो अभी 12-15 साल जीती, दवाइयां खिला के वो मर रही है अब। तो हम उसे रोक तो नहीं सकते, बट what can happen even if you are taking medicine and rest of the things, won't you like to empower your body so that the body doesn't get the brunt of or the side effect of those medicine? क्या आप अपने शरीर को एम्पावर नहीं करना चाहते कि आप बाकी जो चीजें कर रहे हैं उसके कारण आपका शरीर जो खराब हो रहा है, कम से कम इतना नुकसान नहीं हो उसका। सो whatever else you are doing, please go on doing that. I'll not tell you to change, ये तो दुनिया ही अपने आप बोलेगी आपको चेंज करने के लिए। बट अभी मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज एम्पावर योरसेल्फ, व्हाटएवर एल्स यू डू वी विल नॉट स्टॉप यू, एम्पावर जरूर करें, लेकिन ये जरूर करें, ये मैं कह रहा हूं। Some people are asking about conception. So we are having our next webinar next Friday, which is related to Garbhadhan and conception. Please attend that webinar, get in contact with the group admin, and we'll guide you through that. Also, देखिए इसमें IVF का जो ये भी सवाल था, हम सीधे बैठकर, अगर आप सीधे बैठ सकते हैं तो आप कुंभक कर सकते हैं। उसमें IVF से जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं जिसके कारण आपकी बॉडी वीक हुई है, उसकी भी टेक केयर होगी। तो इसीलिए हम आपको किसी प्रोसेस के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर आप अगर सीधे बैठ सकते हैं तो मेक श्योर कि जो उस सब के साइड इफेक्ट्स हुए हैं आप उसको टेक ओवर करें। For corona we have already shared. We will also be sharing this recording with you, so you can watch it again. Any other question? Will the thyroid pass to my baby from me? If you don't do anything about it, yes, it might, ऐसा हो सकता है, but if you empower yourself now, you can take care that it should not get transferred to your baby. आप कुछ अपने ऊपर काम करके इसको इंश्योर कर सकते हैं कि it should not get transferred to your baby. Okay. So as we have said earlier, कि
Can we join this after 8th May, because my 3rd month completed that time and pregnancy will be confirmed at that time, because 4th time bleeding. Okay. See, if you are running in the 2nd month, so you can enroll now, you can take the first session now, and you can go for the customization after your delivery is confirmed, after 3rd month. Am I right? See, both the ways. First, if you still have days, because 8 May is far off, you can actually start the journey now. You can start the journey now. Maybe for just one Kumbhak session, we'll not charge you. We'll charge for the second trimester, but you will have to again enroll now, because you need to start as early as possible. We can take her for the second trimester and the third trimester. वो अभी आप शुरू कर सकते हैं. So as you said that 4 times bleeding happened in last 2 months, that means you were not able to hold your conception. So once you enroll, once you take the first lecture, you start working on yourself, then the holding capacity will be taken care of definitely. So there are the chances to hold and continue this pregnancy will definitely enhance more. So any more questions we have? Okay, thank you so much for your time, and thank you so much for trying something new for your baby. For you need to get in touch with your roots to get the complete health. जब भी कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो मम्मी के पास जाता है, दादी के पास जाता है. तो ये हमारा एक एफर्ट है, ये हमारा एक प्रयास है कि जिससे हम आपको वापस कनेक्ट करें और आपको रिस्पॉन्सिबल बनाए, केपेबल बनाए, स्ट्रेंथन करें, ना केवल आपके लिए बल्कि उस बेबी के लिए भी जिसको आपने इनवाइट किया है आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए, और जो कि पूरी तरह आप पर डिपेंडेंट है. तो डोंट मिस द डिस्काउंट, बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर यू एंड योर बेबी. तो कल दोपहर 2 बजे के पहले एनरोल कीजिए, सीट बुक कीजिए, एंड स्टार्ट योर हेल्दी जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी एंड फॉर नर्चरिंग योर बेबी called A New Life. Thank you so much. Namaskar from Medini here.